इस एपिसोड में वी हैव विद अस अ सेलिब्रिटी डॉक्टर। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब तक गाड़ी चल रही है वी डोंट सर्विस। हम तभी डॉक्टर पास जाते हैं जब वो भट्टा बैठ जाता है, जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लो तो आपके जो एनर्जी है वो नेगेटिव से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। दैट्स द राइट वे। अगर मैं उस माइंड को स्ट्रेंथ दे दूं तो आप घर से निकल गए ना, तैयार भी हुए, गाड़ी बैठे, ड्राइव भी करके गए, वहाँ के पेपर भी साइन किए, वापस भी आए। बिल्कुल। बट द बिजनेस वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और उस बिजनेस से आपको खड़ा कर दिया। तो अगर माइंड को मैं खड़ा कर सकता हूँ, अगर माइंड को स्ट्रेंथ दे सकते हैं तो बॉडी खुद ही संभाल लेगा। सही बात है, वही अल्टीमेट गोल है सर, कि हमारी हेल्थ अपने आप में होलिस्टिकली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें मेडिकेशंस के टुवर्ड्स जाना ही ना पड़े। हम इम्यूनिटी की बात बहुत आजकल कर रहे हैं। इम्यूनिटी क्या है? इज ओनली योर द रिलेशन और द बैलेंस बिटवीन द सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडेक्स टॉक्स। इस एपिसोड में वी हैव विद अस अ सेलिब्रिटी डॉक्टर। Yes, you heard it right. We have with us Dr. Brijinder Singh. He is a homeopathic specialist और सर जो है बहुत सारी ब्रांड्स को कंसल्टेंसी दे चुके हैं, जैसे पंजाब सिंध बैंक, DLF ग्रुप हो गया। सर इज ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल्स ऑफ इंडिया एज वेल एज कैनेडा, एंड ही इज ऑल्सो हेडिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड अकेडमीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन अ वॉडी हिमसेल्फ। सो वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू, आपने टाइम निकाला है हमारे साथ। This video is going to cover a lot of aspects about your health, about homeopathic medication, कैसे ये different होती है आपकी allopathic medication के साथ, how can you choose that which one is good for you or which one is good for which kind of treatment. So make sure कि आप ये video end तक देख रहे हैं and share it with everyone you know, because health सबकी matter करती है, health सबकी important होती है और health insights सबको rightly मिलने चाहिए। So can we start, sir? Sure. We are talking about health. Yeah. Let's forget about the pathies. Okay. The main concept is that when a person who is suffering from some problem, he needs a treatment. So we say, my feeling is that what you want from us, you want to treat symptoms or you want to treat system. Okay. When we talk about system, the symptom will automatically goes away. So my pathy says that if you treat the system, you have to treat the gut line, and gut line is in the mind. And this is a difference between homeopathy and allopathy also, that we want to treat a man and they want to treat a symptoms. Okay. So they are more on chemical based, we are mainly based on the herbs. Our all medicines are being prepared, rather I'll say 70% of the medicines are herb based. So we potendize those medicine and use on the human being. And very important point which I want to tell everyone, homeopathy is the only one science in the world which they prove those medicines on human beings and they use on human beings. Right. Otherwise all other thing has been not on proof on human beings but they use for human beings. Yeah. Testing animals पे होती है. Yeah, testing animal पे होती है and use human being पे होती है. Right. Though the physiological, the pathological part is, the structure is same, but there are a lot of things different between a human being and an animal. True. So we always treat a patient from the mind to body. That's why we say it's a natural way of healing. So that is the only difference, or that is not difference, it's a what superiority we have got. So any patient come to us, we always take a full record of their symptoms. Then we take all the pathological investigation done. Then we talk about who are you, and then he says, okay, I met with this history, I met with the accident, I lost my some near dear, and after that I started developing this type of symptoms. So that's actually emotional part is very important, because emotion always carry from the mind to the body. Okay. ये तो हम सोचते हैं. So it's a big fight कि मैं आपको ठीक करूं या आपके सिस्टम को ठीक करूं. तो जब सिस्टम को ठीक करूंगा तो आपको ठीक करना जरूरी है. जब आपको सिस्टम ठीक करूंगा तो आपका ठीक होना जरूरी है. तो दिस इज वेरी सिंपल साइंस विच कैरी फ्रॉम माइंड टू बॉडी, एंड वी रादर मेक ए बैलेंस बिटवीन द विल एंड अंडरस्टैंडिंग. Okay.
So I give a very simple example to you कि विश हुआ, मन किया, डिजायर हुआ कि मुझे एप्पल खाना है. अब एप्पल खाली डिजायर करने से एप्पल आ नहीं जाएगा, तो फिर आपको उठना पड़ेगा. You have need to go to open a fridge, take out the apple, then you cut it, then eat it. So for that you have to get up from the seat to go to the fridge. Right. So this is the coordination, will and understanding. Okay. When will and understanding की आपस में दोस्ती हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया, तो मुझे हेल्थ मिलनी शुरू हो गई. Rather be very light talk, I'll tell you. We say dis-ease. So dis and ease. When ease goes away, disease comes. So we have to concentrate on the ease of a person, which is his comfort zone. True. And then accordingly you treat the patient. बट सर जैसे कि आपने अभी बताया पर्टिकुलरली जो विल एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इमोशनल या मेंटल स्ट्रेसेस जो हैं वो फिजिकल बॉडी में शोकेस हो रहे हैं. हाउ कैन वन पर्सन नो कि ये इमोशंस हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, या जब तक वो फिजिकल बॉडी पे नहीं आ रहे मैं उनको कैसे ट्रीट कर सकती हूँ, या मैं कैसे रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ? ऐसा है कि एनीथिंग इज नॉट गोइंग एज पर योर विश, you start getting irritated, start getting feeling about it, तो that start accumulating yourself. पहला एक्शन रिएक्शन होगा कि मूड खराब हो रहा है, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा खाम खा आ रहा है, यहाँ इनएप्रोप्रिएट गुस्सा आ रहा है, इतनी बड़ी बात ही जितना गुस्सा आ रहा है. तो दैट ऑल शोज दैट दिस एनवायरमेंट इज प्लेइंग ऑन हिम. Okay. And gradually see that those type of the symptoms or those type of emotions or feelings you are carrying ultimately lead to some problem in your body. And when we take a history, we ask them, अच्छा आप कब बिल्कुल ठीक थे, अच्छा फिर क्या हुआ था? हाँ डॉक्टर साहब वो तो कुछ नहीं हुआ था, बट ये फैमिली में डिस्प्यूट हुआ था, फैमिली में कंट्रोवर्सी आई थी, हम मेरे पेरेंट्स अलग हुए थे, मेरी फैमिली अलग हुई थी. मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, बट मैंने उसको एक्यूमुलेट कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड में मैंने उसको बिठा दिया. एंड देन ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रो अप, वो सिम्टम, वो चीजें मेरे अंदर ग्रो करती गई अननोइंगली एट सबकॉन्शियस लेवल. एंड व्हेन दैट एक्यूमुलेटेड, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे किसने क्या क्या क्रिएट किया था. आज मैं पेट को लेके आ गया कि यस मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरी पेट प्रॉब्लम होती है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स. बट जब उसको आप उसको ट्रीट करते हैं कि उसके वो सिम्टम्स, उसके वो इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करके उसको आप एनालिसिस करके चलते हैं, एंड देन यू विल फील हाँ डॉक्टर साहब दवाई खाने के बाद मेरा पेट तो ठीक हुआ है, मेरा माइंड बड़ा अच्छा हो गया, मेरी एनर्जी लेवल आ गया मेरे अंदर, और वो फीलिंग नहीं आती मुझे. तो होम्योपैथी में वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड ए मैन कि व्हाट मैन इज and what his emotions, setting, feelings, and so moreover very precisely if I come to the point कि if any patient come with a 10 or 11 symptoms or maybe arthritis, let's put the word right way, एक arthritis का patient आता है, उसको हम पूछते हैं भाई आपको क्या फीलिंग आ रही है इसको, how you are dealing with your problem. अब उसने एक ने कहा, अब 10 पेशेंट आपने इकट्ठे कर लिए आर्थराइटिस के, तो सिम्टम सेम है, इमोशन डिफरेंट है. एक अर्थराइटिक पेशेंट कह रहा है, मैं को क्लियर करता हूँ, एक अर्थराइटिक पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब पेन तो है, परेशान तो हूँ, बट मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं बिल्कुल इनवैलिड ना हो जाऊँ. दूसरा कहता है कि मैं डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, डॉक्टर साहब तो मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, डॉक्टर साहब आज मेरी हालत है, कल को क्या हालत होगी. तो हर एक के इमोशन सेटअप अलग अलग है. So we cannot treat that patient with only those arthritic symptoms. Right. We have to treat a patient when we take a symptom of the man, कि what he wants, what he is. तो बेसिकली हमारे पास जब पेशेंट आ रहा है, हम सिर्फ उसको बायोलॉजिकली या मेडिकली नहीं देख रहे हैं, हम एज अ ह्यूमन देख रहे हैं कि उसके एक्सपीरियंसेस हैं, सिचुएशंस हैं, इमोशंस हैं, मेंटल है और फिर फिजिकल साथ में है. चलो आप देखो, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ.
आपके पेट में दर्द हो रही है और आप बहुत शोर बजा रहे हैं, बहुत दर्द हो रही है, बुखार भी साथ आ गया, इतने में आपको ऑफिस से कॉल आती है कि एक बहुत बड़ी डील है, इट हैज़ टू बी डन टुडे एंड आपको ऑफिस आना जरूरी है। ओके। एंड नॉट ओनली फॉर ऑफिस, फॉर यू ऑल्सो, इफ यू कैरी आउट विद दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, यू आर गोइंग टू बेनिफिट सो मच। अब क्या करोगे आप? दर्द तो हो ही रही है दर्द तो बड़ी हो रही है। सर मैं तो पर्सनली पेन किलर खा के चली जाऊँ। एग्जैक्टली, और दिस आई एम टेलिंग यू। तो आपकी अब यहाँ पे क्या आ गया कि विल काउंट ही उसके साथ, और इमोशन को फेंक दिया बाहर आपने। पेट में दर्द हो रही हो, मैं गोली खाऊंगी, गर्म पानी पीऊंगी, मैं रोते पिटते मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे। बिल्कुल। और कोई काम नहीं है तो सारा घर इकट्ठा कर रखा आपने मम्मी भाग रही है, पापा भाग रहे हैं, इसको फोन कर, दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर को फोन करो, आप हिलने लायक भी नहीं हो। ट्रू। तो किसने किसको कैरी किया? बॉडी ने कैरी किया, माइंड ने कैरी किया। माइंड ने कैरी किया। जब माइंड ने कैरी किया तो माइंड को पकड़ो। बिल्कुल। जब आपकी सीधी अप्रोच प्राइम मिनिस्टर पे है तो व्हाई वांट टू गो फॉर द स्मॉल पीपल? सीधी बॉस का बात करेंगे, बॉस हमने संभाल लेगा। तो अगर मैं उस माइंड को स्ट्रेंथ दे दूं, बिल्कुल आप उस पॉइंट पर आ जाते हैं, अगर मैं उस माइंड को स्ट्रेंथ दे दूं तो आप घर से निकल गए ना, तैयार भी हुए, गाड़ी बैठे, ड्राइव भी करके गए, वहाँ जाके पेपर भी साइन किए, वापस भी आए। बिल्कुल। बट द बिजनेस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और उस बिजनेस से आपको खड़ा कर दिया। तो अगर माइंड को मैं खड़ा कर सकता हूँ, अगर माइंड को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, तो बॉडी खुद ही संभाल लेगा। राइट। हमारा माइंड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है या उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उस पर फोकस कर रहा है, तो वो पेन भी डाइवर्ट कर देता है। अब आप दूसरे चलिए कि आप यही पेन की बात करता हूँ कि टेक आउट एनी पेन किलर इन द वर्ल्ड, आई विल नॉट टॉक अबाउट एलोपैथी, एनी पेन किलर नेवर किल्स द पेन, it always give you a numbness in the brain, that you stop feeling that pain. मुझे आज एक सवाल का आंसर पता चला सर कि पेन किलर को पता कैसे चलता है पेन कहाँ हो रही है क्योंकि वो तो वहाँ जाते हैं तो ब्रेन पे जा रहा है। एग्जैक्टली, तो उसने माइंड को उस सिग्नल को वीक कर दिया, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, इन अदर वर्ड्स, या उसको बेनम्ड कर दिया। तो यू स्टॉप फीलिंग द पेन। वेरी सिंपल आंसर। सो व्हाट वी डू एज ए होम्योपैथ, we take a symptom of your emotions and sentiments and prescribe on those so that your mind becomes strong. Okay. When mind becomes strong, automatically your physical body will improve. Right. And sir, apart from medication, मतलब medication तो I would say कि उस फेज पे आती है जहाँ पे पर्सन को ऑलरेडी अनईजी फील हो रहा है या उसे खुद में डायग्नोसिस किसी वे में फील हो रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। बिफोर दैट एज प्रिकॉशनरी क्या हम कोई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहे या हमारे जो इमोशंस हैं या जो स्ट्रेसर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो उस लेवल तक पहुंचे ही ना? वेरी राइट। वी ऑलवेज से छोटा बच्चा होता है ना, तो पुराने आई एम सेइंग ओल्ड सेइंग, तो कहते हैं कि हाउ यू जज दैट दिस चाइल्ड इज हेल्दी और नॉट। ओके। तो हम उसको 3 फॉर्मूले देते थे। इसको भूख लग रही, नींद आ रही है, राइट, पेट साफ हो रहा है, बच्चा हेल्दी है। तो एडल्ट में भी वो कंटिन्यू, एडल्ट में वही आएगा कि आपकी थिंकिंग, इमोशंस ठीक हैं, आप प्रॉपर टाइम पे रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, अपने खाने में आप ध्यान रख रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ को मेंटेन करके बैठे हुए हैं, तो अपने माइंड आपका भी हेल्दी रहेगा। ओके। आप जितनी भी, अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को किसी ने डॉक्टर डिफाइन नहीं कर सका होगा स्ट्रेस क्या है। मेरी पर्सन टू पर्सन, depending on my emotion to emotion, I take the stress. Right. तो when you are positive, तो स्ट्रेस को आप अपने आप डील कर लोगे। बिल्कुल, ट्रू। जहाँ आप डील नहीं कर पाओगे, आप किसी की हेल्प ले लोगे कि मम्मी आज मेरा तबीयत खराब लग रही है, क्या करना चाहिए। मम्मी ने भी जवाब दे दिया, मम्मी की सुनी नहीं, तो भी डॉक्टर आ जाएगा। अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं इस माइंड को, कहीं ना कोई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड जितना इमोशन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उतने आपका बॉडी में रेजिस्टेंस बिल्डअप हो जाएगा। वी वेरी सिंपली से, मोर द सेंसिटिविटी लेस द रेजिस्टेंस, और जितना रेजिस्टेंस कम है उतनी इम्यूनिटी लो है। हम इम्यूनिटी की बात बहुत चल रहे आजकल कर रहे हैं। इम्यूनिटी क्या है? इज ओनली योर द रिलेशन और द बैलेंस बिटवीन द सेंसिटिविटी
एंड रेजिस्टेंस। 10 लोगों ने रसगुल्ले खाए, 2 को वॉमिटिंग हो गई, 8 को तो नहीं हुई। तो रसगुल्ला खराब था, सबको खराब करता। सही बात। तो 2 को खराब क्यों किया? कि उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दैट फूड वाज नॉट करेक्ट, ओके, दैट्स व्हाई ही रिएक्टेड। तो हमने उसकी सेंसिटिविटी कवर करनी है। अब सेंसिटिविटी लोग कहते हैं कि फूड में होती है, मैं कहता नो, सेंसिटिव हमारे अंदर होती है। तो जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी उतनी आपकी सेंसिटिविटी इंप्रूव करेगी, लो जाएगी और रेजिस्टेंस बिल्टअप होगा। तो ये भी हमारे माइंड से ही आ रही है, हमारी रेजिस्टेंस सिस्टम। हाँ, अब माइंड टू बॉडी चार्जर देखो ना, बॉडी टू माइंड है ही कुछ नहीं। ओके, ठीक है ना, सारा कुछ हमारी माइंड टू बॉडी तो जितना आप माइंड को देखो, आप योगा करते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, रिलीजियस प्लेस में जाते हो, व्हाट यू डू? किसी ने भगवान देखा? किसी ने नहीं। व्हेन यू गो टू द गुरुद्वारा और एनी रिलीजियस प्लेस एंड यू से ओ माय गॉड यू आर विद मी, हेल्प मी, एंड सडनली योर स्ट्रेंथ कम, यस आई एंड गॉड इज विद यू, and that feeling that God is with you make you stand up, right, and you can deal with everything, सिर्फ क्योंकि हमने वो बिलीफ बना ली। बिलिंग बना ली। तो वो फेथ को फेथ कह देता है। मैं कहता हूँ नहीं, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने उसको मान लिया, और मैंने मान लिया, मुझे स्ट्रेंथ आ गई। आप यू गो टू ए टीचर, वो आपको जो 4 बातें सुनाता है, ये है, तो आप कहते हो यार दैट्स वंडरफुल, ओ मैं बड़ी, मुझे काउंसलिंग मिल गई। तो काउंसलिंग ने क्या किया? आपके माइंड को स्ट्रेंथ दी। हाँ, अब सेकंड आता है, योगा हैज ए बिग रोल टू प्ले, व्हाट आई फील, बिकॉज एवरी ह्यूमन सेल्स स्पेशली इन द ब्रेन नीड ऑक्सीजन, एंड इफ यू नो दी ऑटो ब्रीदिंग, यू नो दी क्या नाम है योगा, यू इम्प्रूव योर रेजिस्टेंस और इम्प्रूव दी कैपेसिटी ऑफ योर सेल्स टू एकोमुलेट द ऑक्सीजन। ओके, जो आपने क्वेश्चन किया था कि हमें ये प्रिकॉशन लो कि आप अच्छा खाओ, अच्छा सो, ठीक है ना, अच्छे काम करो, कम से एक तो अच्छा काम दिन में कर ही लो, बिल्कुल, तो आपको पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली अपने पॉजिटिव आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। हम ऊपर देखते हैं तो वो यार वो तो बहुत ऊपर चला गया, पर नीचे को हेल्प कर दो तो यार यू फील यार टुडे आई हैव डन समथिंग, तो दैट गिव यू स्ट्रेंथ टू यू। पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लो तो आपके जो एनर्जी है वो नेगेटिव से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगा। दैट्स द राइट वे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सही बात है, वही अल्टीमेट गोल है सर, कि हमारी हेल्थ अपने आप में होलिस्टिकली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें मेडिकेशंस के टुवर्ड्स जाना ही ना पड़े। बट देन अगेन डॉक्टर्स की ज़रूरत हमें प्रिकॉशनरी स्टेजेस में भी पड़ती है, बिकॉज आप सही गाइड करोगे तो ही हम वो स्टेप्स ले सकते हैं, एंड ओनली देन कैन वी स्टे दैट हेल्दी। बिल्कुल ठीक। और सेल्फ हीलिंग इज द बेस्ट हीलिंग, और सेल्फ हीलिंग में सेल्फ मेडिकेशन नहीं, सॉरी आई एम वेरी करेक्ट टू यू, नो सेल्फ मेडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। या द ओनली थिंग इज सेल्फ हीलिंग, एंड सेल्फ हीलिंग इज कीप रेज योर लेवल। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा। यू गो टू मार्केट एंड यू हैव 10 रुपीज इन योर पॉकेट, you don't buy a single thing, ठीक है, and come back. Okay. Next again you go to market and you got 1,000 rupees in your pocket, Okay. and you don't buy anything and come back. Feel the difference? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन Yes. Difference क्या है कि when you have 10 rupees, we have no buying capacity. 10 रुपये में कुछ नहीं आने वाला. सही बात है. When you have 1,000 rupees in your pocket, you have buying capacity, but you don't want to buy. Okay. This is a strength. This what I am talking to you, that you have to improve your mental, physical strength so that you don't need to go to doctor for a medicine. Right. Whether you buy or don't buy, your confidence, your immunity, your resistance should go automatically go up when you have 1,000 rupees in your pocket. बिल्कुल. It's like your positivity currency. Positive, exactly. So this is a reserve with you. So आग लगेगी, मुझे पता है, मेरे पे है, मैं I'll use and I'll vanish that one. But मेरे पास कैपेसिटी नहीं है. मैं वैसे ही सोचता रहूँगा ना, वैसे वो मर जाएगा. क्या होगा? तो उसका 10 रुपये नहीं हो तभी मर जाएगा वो. So this is the difference between that. What is resistance? What is the self healing? Self healing is when you accumulate yourself. अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल. अकाउंट में पैसे होंगे तभी निकालोगे ना. तो मेरा अकाउंट क्या है? हेल्थ अकाउंट क्या है मेरा? हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करा लो, सी योर हीमोग्लोबिन, सी योर विटामिन D3, सी योर B12. वाई? दैट रिप्रेजेंट योर सिस्टम.
कि where you need to work more, where your system has to work more, Right. and then you are healthy, So and you are that's healthy, you don't need important. doctor. बिल्कुल. So regular testing is also kind of important. Is that a message for our patients? कि Yeah. हम उसे precautionary steps में add कर सकते हैं. So good food, good sleep, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना, अपने आसपास एक अच्छी वाइब, एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करना, योगा, मेडिटेशन, एंड ऑल्सो रेगुलरली मेडिकल चेकअप्स, और एटलीस्ट कीपिंग अ ट्रैक कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है, एंड इफ़ यू एवर फील अनईजी, निपिंग इट देयर एंड देन, एंड यू नॉट वेटिंग फॉर इट टू गेट अक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, ताकि वो आपको ज़्यादा बड़े लेवल पे डिजीज कॉज करे या अनईजीनेस कॉज करे. स्कूल के बच्चे की रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते नहीं हम. आई थिंक सर हेल्थ वैसे ही बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड होता है. लेकिन नहीं, वो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब तक गाड़ी चल रही है वी डोंट सर्विस. हम तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो बट्टा बैठ जाता है, जब वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है. बिल्कुल. सो व्हाई नॉट व्हेन वी थिंक ऑफ ए चाइल्ड इन द हाउस, आप उसकी क्या नाम है, वो क्या ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट देखते हो, हाफ ईयरली रिपोर्ट देखते हो, क्लास टीचर से बात करते हो, वो क्या नाम है, टीचर पीरियड मीटिंग होती है. व्हाट फॉर? यू ओनली टेक ए रिपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड, दैट हाउ चाइल्ड इज डूइंग ओवरऑल. राइट. और जब रिपोर्ट कार्ड छोटे बच्चे की आती है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे, उसमें लिखा आता है चाइल्ड इज एक्सट्रोवर्ट, ही इज वेरी एनर्जेटिक, बट ही नीड हेल्प हियर, ही इज लैकिंग दिस पॉइंट. राइट. So then next you report. That's why I say when you talk about the health of a person, I think precautions is always much more required than the actual this one. So make a report card of your health every 6 months, yearly, according to your age and thing. Get your all tests done, and then fix a goal for your life. Okay, these points I have to cover up. That is very important. That's very important. कुड बी इन एनी वे कि मेरे को अपने विटामिन नॉर्मल करने हैं, मेरे को इतना वेट कंट्रोल करना है, इतनी हेल्दी डाइट करनी है, और सोना है, स्लीप लेनी अच्छा सोना है, जिसको सब इग्नोर करते हैं. बिल्कुल. Actually- बहुत डिफिकल्ट है आज के लाइफस्टाइल. नहीं, दैट्स ट्रू. मैं थोड़ा सा इसको फिलोसफिकल लेके चलता हूँ आपको. मैं पुराने ज़माने में व्हेन एवर रादर इन स्कूल ऑल्सो दैट वी यूज्ड टू प्रे. राइट. हम बीइंग सिक, गुरुद्वारे में तो लंगर आने के बाद पहले अरदास होती है, फिर वो जकारा छोड़ते हैं, फिर कहते हैं खाना खाओ. ओल्ड एंशिएंट में मैं पढ़ रहा था और देखा भी है कि थाली आती थी, वी यूज्ड टू प्रे, राइट. थैंक गॉड वी आर गिवन फूड टू अस, एंड देन हम पानी का छिड़काव करते थे. ओके. हाँ जी. आई हैव सीन. ठीक है. तो व्हाट वाज दैट मीनिंग कि व्हेन यू प्रे यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन व्हाट यू से इन प्रे, थैंक गॉड यू आर गिवन फूड टू मी. फिर हम उसकी जो हीट ऑफ द फूड एंड द बॉडी हीट, हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं बाय थ्रोइंग द वाटर आउटसाइड, ओके. एंड देन वी ईट द फूड. तो डाइजेशन बिकम ऑटोमेटिक एक्सीलेंट. फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आया, ब्रिटिशर आ गए, उसमें स्टाइल आ गया, कैंडल लाइट डिनर हो गया, क्रॉकरी हो गई, ये हो गया, बड़ा बढ़िया हो गया, और माइंड एकस्टम हो गया टू दैट फूड. रादर फूड बिकम ए सेरेमनी. राइट. देन केम अमेरिकन सिस्टम ऑफ द फूड कि भागते खाना खाओ. 80% अमेरिकन दे टेक ब्रेकफास्ट व्हाइल रनिंग. फास्ट फूड. वो फास्ट फूड उसकी देन होगी ना, फास्ट फूड तो उसकी क्रिएशन हो गई. व्हेन यू नो टाइम यू रन एंड यू ईट, तो नेचुरल फास्ट फूड आएगा, फास्ट हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा. अब वो इंडिया वालों ने कैसे मैं इंडिया की बात ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं. बिल्कुल. कि हमारे डाइनिंग टेबल पे टीवी लगा होगा, हमारे डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन होगी, हमारे डाइनिंग टेबल पे मोबाइल होगा, और खाता था मोबाइल, कोई मोबाइल बंद नहीं करता. तो आपने ना तो पूजा की, ना तो ब्रेन कट किया, ना सीधा खाना खाया, वो डिस्कशन करते मुंह में डालते गए, खाते चले गए. तो डाइजेशन कहाँ से होगी? आपके एंजाइम रिलीज ही नहीं होंगे, फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा. ओके. तो यू नीड टू create an environment, atmosphere, so that you are this is a ceremony, this is what we are working for. और जिसके लिए वर्क कर रहे हैं वही नहीं खा रहे हैं, वही नहीं एंजॉय कर रहे हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल आवर बॉडी कि हाँ, यू नो, यू हैव टू स्टार्ट. बच्चे के लिए कह देते हो आप कि अब लंच टाइम हो गया, ब्रेक डिनर टाइम हो गया, स्लीपिंग टाइम हो गया. पर जब बड़े होते हैं, जब वी बिकम बॉस, वी डोंट हैव एनी लॉ.
वही लॉ अपने पे लगा दो ना कि आप 8 बजे सोना है, 1 घंटा पहले टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट रखने नहीं है, हैव ए पीसफुल स्लीप। जितनी पीसफुल स्लीप मिलेगी उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है एडल्टहुड के लिए rather than एग्जैक्टली बच्चों को। वो टाइम टेबल नॉर्म्स वी हैव टू रिपोर्ट कार्ड या हमें अपने लिए भी बनानी है ना। बिल्कुल। एक बनानी शुरू करोगे आपको लगेगा मुझे कोई दवाई चाहिए नहीं मुझे। एंड एक बार वो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ गया, आपको उसकी आदत डल गई, देन ऑटोमेटिकली यू कैन नेवर गो बैक टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यू कैन नेवर गो बैक टू बैड हैबिट्स वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ गुड हैबिट्स। इसलिए हैबिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको कैसे यूज करते हो उसमें से एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। चाहे आप 5 मिनट रोज करो, डोंट फिक्स ए टारगेट कि मैं 3 घंटे करूंगा। आप 5 मिनट करो, फिर 10 कर दो, फिर 15 कर दो, तो यू विल अचीव। बट उसको ब्रेक नहीं होने देना। एक मैं किसी बहुत एक अच्छे एथलीट से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि ही इज नाउ 86 ईयर ओल्ड एंड ही स्टिल रन्स अराउंड 20 किलोमीटर डे, स्टिल डेट। इसे डॉक्टर साहब आज भी ना शू डालना मुश्किल होता है, बट एक बार शू डाल देता हूँ, देन आई एम ऑन द रोड। वो इनिशियल फ्रिक्शन सिर्फ जो तो वो जो हैबिट है ना कि आज ब्रेक करना है, आज निकलना ही है, आज मैंने वॉक पर जाना ही जाना है, आज मैंने योगा करना ही करना है, तो दैट विल गिव एवरीथिंग। बिल्कुल। सो हैबिट फॉर्म करो। Thank you so much for watching the video and share it with all your family and friends because again जैसा कि मैंने beginning में कहा, health सबके लिए बहुत ही important factor है and everybody should get to learn the right things about it. Make sure you're liking the video, you're commenting if you need any other topic to be covered. Subscribe to the channel. Thank you for watching.